ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بعض دوست جانتے ہوں گے، گزشتہ دنوں میری ایک مسیحی دوست کے ساتھ گفتگو ہوئی اور موضوع یہ تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے، صلیبی موت سے بچائے گئے تھے، یا جیسا کہ مسیحی حضرات کا دعویٰ ہے وہ صلیب پر فوت ہوئے تھے۔ تو اس سلسلہ میں نے جو دلائل دیے تھے اس میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام بیان ہوا ہے بائبل میں، یسوع جس کو انگریزی میں جیسس کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں یہوشوا یا یشوع کے نام سے پکارا جاتا ہے، خود اس میں پیشگوئی موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دشمنوں کے ہاتھوں سے بچائے جائیں گے۔ اور اس سلسلہ میں نے بعض مسیحی علماء کی لکھی ہوئی جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں سے حوالے دیے تھے، تو اس پر کسی دوست نے رسپانس کیا ہے، اس کی طرف تو بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے حوالے دیے تھے، اور اس میں آج انشاءاللہ مزید جو ہے لغت کے حوالے دیے جائیں گے۔ پہلا حوالہ دیا تھا اینکر بائبل ڈکشنری والیوم 3، جو ہے اس کا بہت ہی معروف بائبل کی ڈکشنری ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے Jesus Christ is a composite name made up of personal name Jesus, from Greek Isus, which transliterates Hebrew, Aramaic, Yeshua, and Hebrew Yehoshua، اور اس کو وہ معنی یہ بتاتے ہیں، meaning of which is Yahweh is salvation، or Yahweh saved، or Yahweh has saved۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی مدد سے بچایا جانا۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا وینس ایکسپوزیٹری ڈکشنری، یہ بھی بہت معروف ڈکشنری ہے۔ اس میں بھی وہ لکھتے ہیں ایسوس از اے ٹرانسلیٹریشن آف اے ہیبرو یوشوا، میننگ یہووا از سالویشن، یہووا از دا سیویئر۔ تو ہر جگہ خدا تعالیٰ جو ہے بچانے کا جو منصب ہے وہ خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے ان کے معنوں۔ اب ان سے بھی معروف ڈکشنری ہے جس کا باقاعدہ جو انٹرلینئر تراجم ہوتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، اس میں اس ڈکشنری کا نمبر دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ نمبر۔ اس لکھنے والے کا، اس عالم کا نام ہے جیمز سٹرانگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے کیا معنی کرتے ہیں۔ ان کی ہیبرو جو ڈکشنری ہے اس کا نمبر ہے، معروف ہے یہ اسٹرانگ نمبر کے طور پر 3090 اس کا نمبر ہے، اور اس میں 3091، اور اس میں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یشوع اور یہوشوا، یہووا سیوڈ۔ تو اس میں بھی وہ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ وہ
यहोवा बचाता है, यानी जिसका ये नाम है उसमें पेश गोई है कि खुदा ताला उनको बचाएगा, ना कि बचाने का मनसब जो है वो खुद यीशु के पास है कि वो बचाएगा, जैसा कि मसीही हजरात का दावा है। फिर थियोलॉजिकल वर्ड बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, ये भी बहुत मारूफ डिक्शनरी है इब्रानी जबान की अंग्रेजी में, और इसमें भी देखते हैं कि क्या मायने है। ये डिक्शनरी मेरे पास मौजूद है हार्ड फॉर्म में। इसमें लिखा है कि इसके मायने हैं, याशा से ये लफ्ज निकला है, जैसा कि अरबी जबान में मुख्तलिफ रूट्स होते हैं अल्फाज के, इसी तरह वो कहते हैं कि इसका जो रूट है वो याशा है, और याशा के जो मायने हैं वो हैं साल्वेशन, डिलीवरेंस वगैरह। लेकिन चूंकि यहवे का नाम साथ है, इसका मतलब है साल्वेशन फ्रॉम यहवे। और फिर इस सिलसिला में वो एक हवाला भी उन्होंने दिया है कि खुद बाइबल ने इसके इस लफ्ज के यही मायने किए हैं। वो है ज़बूर बाब 68 और आयत नंबर है 19। अब हम देखते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। ज़बूर की किताब बाब नंबर 68 लिखा है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है, खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावन खुदा की हैं, यानी खुदा ताला की जो रास्ता है वही मौत से बचा सकता है। तो ये भी जो मैंने पहले हवाले दिए हैं उससे मुत्तफिक हैं। इसी तरह डिक्शनरी ऑफ बाइबल प्रॉपर नेम्स, यानी जो बाइबल में प्रॉपर नेम आए हैं उसकी ये डिक्शनरी है। इसमें ये लिखा हुआ है, यहोशुआ द साल्वेशन ऑफ लॉर्ड, द साल्वेशन ऑफ यहोवा। तो इसमें भी वही माने किए गए हैं जो पहली डिक्शनरियों ने किए हैं। फिर हम देखते हैं कि ये एक मजमून है द हिब्रू मीनिंग ऑफ जीसस। इसमें ये लिखा हुआ है, द प्रीफिक्स यहू इज एन एब्रीविएशन ऑफ टेट्राग्रामेटन, यानी चार जो लफ्ज जो मजमूआ है यहोवा का, उसका ये मुखफ़िफ है यहू। इसके वो लिखते हैं कि इसके जो अल्फाज हैं वो हैं युद हे फाओ हे याहवे। तो इसके वो मायने ये लिखते हैं, द लिंग्विस्टिकली द नेम Yahuwah, Jesus conveys the idea that God delivered, God saved, God rescued। तो इसके भी यही मायने हैं। खुद इस लफ्ज में पेश गोई मौजूद है इनके नाम पे कि अल्लाह ताला उनको बचाएगा। इसी तरह ये एक डिक्शनरी है जिसमें मुख्तलिफ जो नाम है मुख्तलिफ ज़बानों के, उसमें उनके माने बयान किए गए हैं। और यहाँ यशुआ के माने लिखते हैं, गॉड इज माई साल्वेशन, यानी हर जगह जो बचाने का अमल है वो खुदा ताला की तरफ मंसूब किया गया है। विकिपीडिया मजमून है सिलसिला में कि यशुआ के बारे में, जीसस के बारे में, उसमें लिखा है, द नेम यशुआ हैज द फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑफ येहू एंड शुआ। येहू इज अनदर फॉर्म ऑफ याहू theophoric element standing for the name of God। आगे फिर वही है कि tetragrammaton Yahweh sometimes transcribed into English as Yahweh and Shua। कहते हैं वो दो चीजों का ये मुरक्कब है, कंपाउंड है दो लफ्जों का,
याहू यानी याहवे का मुखफ़िफ और शुआ, और आगे वो लिखता है कि शुआ इज अ नाउन मीनिंग अ क्राई फॉर हेल्प, अ सेविंग क्राई, यानी जब उसके नाम में ये चीज है कि जब वो मदद के लिए बुलाएगा तो फिर वो बचाया जाएगा। इसका सबूत खुद बाइबल में मौजूद है। जो 22वीं ज़बूर है ये मसीहियत में मारूफ है, सलीबी ज़बूर, द पसाल्म ऑफ क्रूसिफिक्शन। गूगल में जिसका जी चाहे लिखे लफज क्रूसिफिक्शन ज़बूर, क्रूसिफिक्शन पसाल, तो उसको सबसे पहले टॉप पे ज़बूर नंबर 22 मिलेगी। इसमें पता चलता है कि वो एक दुआ है जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी, और मसीही हजरात मसीह की तरफ मंसूब करते हैं कि ये एक पेशगोई के तौर पर मसीह की दुआ थी। इसके आयत नंबर 21 में लिखा है कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया, और उससे ऊपर है ये पुकार कि मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बबर के मुंह से बचा। और आखिर में ये लिखा है बल्कि तूने सांडों के सींगों से मुझे छुड़ाया है, ये नहीं कि छुड़ाएगा, ये नहीं कि छुड़ाया है, यानी दुआ जो है वो कबूल की गई है। और इसका सबूत खुद न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है, इब्रानियों का खत है और बाब नंबर 5 है, आयत नंबर 7 है, लिखा है इब्रानियों का खत बाब नंबर 5 और आयत नंबर 7। ये हवाले मैंने उस दिन भी दिए थे। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। तो एग्जैक्टली जो मानी है लफज यहोशुआ के, उसके मुताबिक बाइबल भी तायीद करती है कि बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने उनको बचाया जिस तरह के पहले से उसके जो लफज है, उसका जो नाम है, उसमें वो पेशगोई मौजूद थी। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या तबसरा किया है इस पर। जनाब वो फरमाते हैं कि मती की किताब में ये बात लिखी हुई है, मती बाब 1 आयत नंबर 21 के यूसुफ के जो खामन थे, मरियम के जो खामन थे जिनका नाम यूसुफ था, उनको ये खुशखबरी दी गई। क्या? जब उन्होंने इरादा किया, उनको पता चला कि ये मेरी बीवी तो हामला है पहले ही, तो उन्होंने छोड़ने का इरादा किया। तो फरिश्ता ने आके कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो कहते हैं यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये वजह है उनके नाम यसू होने की। हालांकि बाइबल जो है वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई है। इसी मसलन लूका की जो इंजील है, यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि जब हमल ठहर गया तो उस वक्त तक मरियम के खामन को फरिश्ता ने ये खुशखबरी दी। लेकिन
ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں اس کے بالکل خلاف لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ متی کی انجیل کے برخلاف کہ مریم جو ہے ان کو پہلے سے ہی حمل ہونے سے پہلے یہ خوشخبری دی تھی. کیا خوشخبری دی تھی؟ اس کا ہم ذکر دیکھتے ہیں. لوکا کی انجیل ہے اور باب نمبر 2 ہے. اس میں لکھا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. باب نمبر 1 آیت نمبر 31-32. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. دیکھیں یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو گناہ سے نجات دے گا. باقی 2 اناجیل جو ہیں, یعنی تینوں اناجیل لوکا, مرکز, یوحنا, وہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. متی کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کر کے وہ شامل کرتا ہے. مثلاً متی کی انجیل میں لکھا ہے, کوئی ہے مسیحی جو اس چیز کا جواب دے؟ کیا لکھا ہے؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں. متی کی انجیل ہے, باب نمبر 27 ہے. لکھا ہے کہ جب مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تو قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی جو آرام میں تھے, اور اس کے اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر اور مقدس شہر میں جا کر بہتوں کو نظر آئے. کیا کوئی مسیحی اس کا تاریخی ثبوت دے سکتا ہے؟ اور کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ مردے اٹھ کر قبروں سے شہر میں آ جائیں, اپنے لوگوں کو ملیں, اور تاریخ اس کا ذکر ہی نہ کرے؟ ناممکن ہے یہ چیز. مسیحی حضرات کو چیلنج ہے کہ تاریخ میں بتائیں کہ یہ واقعہ اتنا زبردست واقعہ ہوا ہے اور کسی تاریخ دان نے اس کا ذکر تک نہیں کیا. جوسیفس جو یہودیوں کا معروف تاریخ دان ہے, اس نے مسیح کے وقت کے تھوڑی دیر بعد تاریخ لکھی ہے یہودیوں کی. کہیں ذکر کیا, اشارہ تک بھی نہیں ایسے کسی بات کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اناجیل موجودہ صورت میں اس قابل نہیں ہے کہ ان پر اعتبار کیا جائے. مثلا خود مسیح کے بارے میں پیش گوئیاں ان کے منہ میں ڈالی گئی ہیں تو انہوں نے پہلے سے ہی بتایا ہوا تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور پھر میں جی اٹھوں گا. لیکن جی اٹھنے کا جو وقت ہے متی کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. مگر میں حوالہ دے دیتا ہوں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, حوالہ لگا بھی دیا جائے گا. تیسرے دن زندہ کیا جاؤں گا. متی باب 17 آیت نمبر 22 اور 23. مگر مرکز میں ایک جگہ نہیں 2 جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تیسرے دن کے بعد جی اٹھوں گا, یعنی چوتھے دن. اب کس بات پر ہم اعتبار کریں, تیسرے دن کا یا 3 دن کے بعد جی اٹھنے کا؟ اسی طرح لوکا جو ہے وہ یہ حوالہ دیتا ہے, وہ اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. 3 دن کے بعد جی اٹھے گا. مرکز باب 8 اور آیت نمبر 31, مرکز باب 10 اور آیت 33 اور 34. اب بتائیں کس کا اعتبار کریں؟ مگر ان دونوں کے مخالف یوحنا کا بیان دیکھیے. یوحنا یہ لکھتا ہے کہ جب جو حواری تھے وہ یسوع مسیح کو دوسرے دن تلاش کے لیے نکلے, اس کی قبر پر گئے تو دیکھا کہ وہاں تو لاش ہے ہی نہیں ہے.
तो देखकर यकीन ना किया, यानी इस बात का यकीन ना किया कि वो लाश यहाँ से गायब है, वो कैसे चला गया, वो तो मर गया था। और आगे लिखा है, क्योंकि वो अब तक इस नविश्ता को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। वो कहते हैं उनको तो पता ही नहीं था इस पेश गोई का, उन्होंने तो कभी सुनी ही नहीं थी। अब बताएं किस चीज का एतबार किया जाए, तीसरे दिन जी उठने का, 3 दिन के बाद जी उठने का, या इस बात का एतबार करें कि उनको तो इल्म ही नहीं था इस पेश गोई का। इससे पता चलता है कि ये सब चीजें अपने अकायद के मुताबिक बाद में शामिल की गई हैं, वरना अगर हकीकतन ये खुदा का कलाम होता तो इतना बड़ा तजाद नहीं हो सकता खुदा के कलाम में, क्योंकि कुरान करीम के मुताबिक कुरान ये दावा करता है कि अगर ये खुदा का कलाम ना होता तो तुम इसमें तदाद देखते। और ये तदाद हम बार बार हमारी नजर के सामने आता है, जो तदाद है बाइबल के बयानात में। इस पर वो जो मसीही दोस्त थे जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने एक ही हवाला दिया था खुद, और वो हवाला था लूका बाब 24 आयत नंबर 44 का, 44 का और 46 का। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात, नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। और आगे क्या लिखा है वो दावा कर रहे हैं, मसीह के मुंह में क्या अल्फाज डाले हैं, वो है, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है, कहाँ लिखा है, किताब मुकद्दस में, और किताब मुकद्दस की तशरीह भी खुद मसीह ने कर दी है कि मूसा की तौरात, नबियों के सहीफों और जबूर में ये बात लिखी है। और लिखा क्या है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मैंने उनको चैलेंज किया था कि मुझे ये दिखाएं, ये कहाँ लिखा हुआ है, और आज तक कोई दिखा नहीं सका, और क़यामत तक नहीं दिखा सकते, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। मैं उन दोस्तों से जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है, सुफियान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आपके जो दोस्त हैं जिनकी आप फतह के टंके बजा रहे हैं, वो तो आज तक नहीं दिखा सके, आप ही दिखा दें ये कहाँ लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो बाइबल के बयानात हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनके अकायद तो हो सकते हैं मसीही हजरात के, लेकिन इनका हिस्ट्री से या लुगत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने हवाले देकर अल्लाह ताला के फजल को, और हवाले भी तमाम के तमाम उन लोगों के हैं जो बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं, मन गढ़ंत और अपनी बनाई हुई लुगत की किताबें नहीं हैं, खुद उनकी किताबें हैं जिनके मैंने हवाले दिए हैं और मारूफ हैं पूरी दुनिया में, जिससे पता चलता है कि दर हकीकत जो मसीह का नाम है उसमें ही पेशगोई मौजूद थी कि वो खुदा ताला की मदद, खुदा को पुकारेगा और खुदा ताला की मदद से वो बचाया जाएगा। अब मसला ये रह गया कि वो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि उसके जरिए लोग गुनाहों से बचाए जाएंगे। तो बड़ी आसान बात है फैसले की, देखना पड़ेगा कि बाइबल के मुताबिक क्या पहले से पेशगोइयां मौजूद थी कि वो बचाया जाएगा, और दूसरी बात ये कि क्या उन्होंने किसी को गुनाह से बचाया। क्या कोई शख्स गुनाहों से महज इसलिए बच जाता है कि एक शख्स खुदकुशी कर ले, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका, लानती मौत मरे, तो उस लानती मौत के नतीजा में लोग बचाए जाते हैं। मैं दरखास्त करता हूं उनसे कि वो अपना नुक्ता नजर बयान फरमाएं कि किसको बचाया गुनाह से, कौन गुनाह से बचा,
किस किस्म के गुनाहों से बचे? बाद गुनाह मसलन उनका अकीदा ये है कि बाद गुनाह जो है वो विरसा में मिला है दुनिया को, तो क्या विरसा के गुनाह से बचाया? आज जो लोग पैदा होते हैं मसीह के बाद, जितने भी लोग क्या वो विरसा के गुनाह से बचाए गए हैं? क्या वो गुनाह जो हम जाती तौर पर किसी का करते हैं, यानी किसी को कत्ल कर दिया, किसी को का माल लूट लिया, किसी की जायदाद दबा ली, वो गुनाह भी माफ हो गए मसीह के मरने से? या वो गुनाह जो महज भूले से हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं, वो गुनाह माफ हुए हैं? और फिर सबूत दिया जाए कि गुनाह माफ होने के क्या अलामात बयान की हैं बाइबल में, ताकि पता चले कि ये सिर्फ दावे ही हैं, ट्रक की बत्ती पीछे तो नहीं लगाया हुआ कि गुनाह माफ हो गया, गुनाह माफ हो गया। इसका सबूत क्या है? क्या अलामात बयान की हैं उन लोगों की बाइबल ने जिनके गुनाह माफ हो जाते हैं, और फिर वो दिखाए जाएं कि किस किस के गुनाह माफ हुए। तो इसी के साथ ही और हम इंशाअल्लाह कुरान करीम की जो तालीम है उसके मुताबिक बताएंगे कि कुरान ने क्या अलामात मुकर्रर की हैं उन लोगों की जिनके गुनाह माफ किए जाते हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से हम बताएंगे कि वो जो कुरान पर अमल करते हैं, जो कुरान की तालीम को अपनाते हैं, उनको ये दिए जाते हैं निशानात। आखिर में मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि मोहतरम, जहां तक गुनाह से बचाने का ताल्लुक है, वहसियत नबी के तमाम अंबिया जो हैं उनका मकसद ही भेजने का ये होता है, खुद बाइबल के मुताबिक, कि लोग गुनाह से बचाए जाएं। इस सिलसिला में मसीह में और बाकी अंबिया में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह बाइबल के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है, यर्मिया बाब 35 आयत नंबर 15 लिखा है, मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास हर वक्त भेजा, ये कहते हुए कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने अमाल को दुरुस्त करो और गैर माबूदों की पैरवी और इबादत ना करो। देखें, यहाँ खुदावन नबियों के भेजने का मकसद ही ये बता रहे हैं कि वो बुराइयों से बचाएं, गुनाह मुआफ करवाएं, लेकिन किस तरह कि वो अंबिया की तालीम पर अमल करने के नतीजा में। यर्मिया बाब 35 आयत नंबर 15। अब बताएं, बाकी नबियों के आने का भी यही मकसद होता है। मसीह ने कौन सा अजीब बात की है? बाकी जहां तक रहा उनका मसीह पर सलीब पर मरना और उसके जरिए गुनाह माफ करना, इसका जब सबूत देंगे तो इंशाल्लाह हम अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे। इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अगर किसी दोस्त में कोई सवाल करना हो तो मैं हाजिर हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, जज़ाकुमुल्लाह तआला से जज़ा। जी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी डिटेल से ये बात अल्हम्दुलिल्लाह बता दी है, दोस्तों को समझा दी है। मेरा ख्याल है जिन्होंने इतराज़ किया है, जिन्होंने वीडियो भी बनाई है, अल्लाह ताला उनको अगर ओपन माइंड दे तो उनको भी समझ आ जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल आपको पता ही है कि जो मुतअस्सिब ज़हन है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है समझना। आपने हमारे दोस्तों को बहरहाल असल पैगाम पहुँचा दिया है, दोस्तों के इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसके अलावा अगर वो कोई बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आइंदा हम देख लेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बताने का। आपके ने जो हवाला जात भेजे थे वो भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो को अलहदा बना के उसके साथ वो हवाला जात अपलोड कर दूंगा, ताकि जिस दोस्त ने मजीद कोई रिसर्च करनी है वो देख ले। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।